Morning to class 6 students. Our sun is there on the blackboard to welcome you all. So I hope so you all are good. So now let's begin with our mathematics class, and all of you are aware that this is our maths class. So in today's class we are going to learn some new things. We will revise few things, few questions related to your fractions, and we will learn few new questions how to solve them. So a very huge welcome to class 6 students in your mathematics section. So let's begin our section. Students, look at the question number 3. Let's have a revision of question 3. In question 3, what is written? Simplify. And look at the first part. As you know that we are doing with this again and again, that whenever mixed fraction is given to you, you have to convert them into the fraction. So 3 2s are 6. 6 plus 1 will give you 7. So 7 by 2 for this. And 3 1s are 3. 3 plus 1, 4 by 3. 5 4s are 20, 20 plus 1, 21 by 4. So now what is our next step? Take the LCM of 2, 3 and 4. When you will take the LCM of 2, 3 and 4, you will get 12. So what you need to do? You will search for a number that should be multiplied over this, so that should be multiplied over this, so that कि आपका LCM ही आ जाए, so that you can get 12. अगर हमें फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वी हैव टू मेक दिस डिनोमिनेटर सेम. सो वट एवर नंबर यू आर मल्टीप्लाइंग ओवर हेयर, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 6, 2 6s will give you 12, that is your LCM. तो दैट पर्टिकुलर नंबर विल बी मल्टीप्लाइड एट न्यूमरेटर साइड ऑल्सो. उसी नंबर को आपको न्यूमरेटर की साइड से भी मल्टीप्लाई करना होगा. इज दैट क्लियर? सेम प्रोसीजर फॉर द नेक्स्ट. 3 4 इज 12, तो सेम 4 की मल्टीप्लाई आप ऊपर भी करोगे. Again, move to the next fraction. When you multiply 4 with the 3, you will get 12, your LCM. So again you have to multiply with this 3 above also. So beta 7 6 is 42, 6 2 is 12, 4 4 is 16 and 3 4 is 12, and 21 into 3 will give you 63. So I have written 63 over here. So when the denominator is same, you can write it at once. आपको एक ही बार लिखने की ज़रूरत होती है, एक ही बार लिखने की नीड होती है. After that 42 write it as it is, and minus sign you will write as it is. 16 you will write as it is, and 63 you will write as it is. तो 42 और 63 you will add both this number, or you can subtract 42 and 16. जो रिजल्ट आपका आएगा वो 63 में ऐड हो जाएगा. ठीक है, 42 में से 16 you will subtract, you will get one number, and you will add that number to 63. Then you will get 89 by 12. When you will convert it into the mixed fraction, the fraction will be this. Now students, let's revise the C part, and other parts, let's B, D, E and F will be your homework. So look at your C part. 1 is there, nothing is there. 1 minus 1 by 4 plus 2 by 3. So when 1 is only alone, when 1 is alone, that means at the denominator side 1 is there. You all know about that. So we will take the LCM of 4 and 3. 1 का तो हम LCM लेते ही नहीं है, तो 4 और 3 का LCM you will take, तो आपका आएगा 12. ओके. सो बेटा अब हमें सेम वही प्रोसीजर करना है कि हमें अपना डिनोमिनेटर सारे इक्वल करने हैं, और जिस नंबर की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही सेम नंबर हम न्यूमरेटर से के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर हमारा LCM आया 12, तो 1 and 1, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड यू विल मल्टीप्लाई 12. अब 1 की ना 4 into 3 you will do, तो 4 3 is 12. So this 3 will be multiplied at the numerator side also. 2 by 3. So 3 4 is again 12. तो 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की साइड हुई है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर की साइड भी होगी. तो ये हो जाएगा 12 by 12. This is 3 by 12. This is 4 2 is 8 by 12. So all 12s are there. Your denominator is same. Now you can add your subtract your fraction. When we have the same denominator, we used to write it at once. Okay, we used to write it once. So now what you are going to do? You will write 12 once. 12 minus 3 will give you 9 plus 8. So 9 plus 8 is 17. 17 by 12. So when you convert it into the mixed fraction, it will become 5 by 12. Students, look at the question number 4. If you look at the question number 4 in the book, you will see that what is written.
Subtract the sum of 13 1 by 2 and 6 2 by 3 from the sum of this. That means the question is saying that when you will do the sum of this and you will do the sum of this, from the sum of this, from मतलब इसके अंदर से, from this, from the sum of these two mixed fractions you have to subtract the sum of these two numbers. This the question is saying to you. So what you are going to do? So I have written, जिसमें से मुझे subtract करना था वो नंबर मैंने लिख लिया क्योंकि मुझे इसमें से subtract करना है, और from के बाद जो नंबर होता है, जितना भी नंबर होता है वो पहले आता है. ओके, so whatever is written after from I have written first, as the question is saying that we have to do the sum of these two numbers, and after doing the sum we will subtract the sum of this, that means addition of this from this. I hope so the language of the question is clear to you. So now look at over here students, this is mixed fraction, so we will convert it into the fraction. 15 2s are 30, 2 15s are 30, same thing. 30 plus 1, 31 by 2, again 6 4s are 24, 24 plus 3, 27 by 4. Minus का sign you will write as it is, and 13 into 2 will give you 26, 26 plus 1 that is 27 by 2, and 16 3s is 18, 18 plus 2 that is 20 by 3. आप जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो यू विल राइट डिनोमिनेटर एज इट इज़, एज यू नो दैट. आफ्टर दैट आई हैव टेकन द एलसीएम ऑफ दीज टू. अभी मुझे इनका एडिशन करना है, इसकी बात हम कर नहीं रहे हैं, तो अलग अलग एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 2 और 4 हमने लिया तो आई विल गेट 4, एंड एलसीएम ऑफ 2 and 3 आई हैव टेकन तो आई विल गेट 6. तो अब इनको मुझे डिनोमिनेटर को बेसिकली सेम करना है. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई. देखो हमारा एलसीएम 4 है तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ मेरा सेम हो जाएगा फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर साइड फ्रैक्शन सेम हो जाएगा. तो मैंने 31 की मल्टीप्लाई 2 से करी और 2 की मल्टीप्लाई भी 2 से करी, तो इट विल बिकम 62 by 4. सिमिलरली 67 by 4 यू विल राइट एज इट इज़. ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 4 ही है, एलसीएम जैसा ही है. After that minus sign you will write as it is. Now 6 is your LCM. If you multiply 2 with the 3 you will get this 6. So जो नंबर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो वही सेम आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है. तो 27 into 3 will give you 81 and 2 into 3 will give you 6. Again what you have to did, again आप देखो बच्चे आपकी वैल्यू है 2 by 3, बट मुझे इसे 6 बनाना है, तभी तो मैं अपने फ्रैक्शंस को ऐड करूँगी. जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तभी तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को, उससे पहले तो नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज़ वाई वी यूज़ टू टेक द एलसीएम, वी यूज़ टू मल्टीप्लाई लाइक दिस कि हमारा फ्रैक्शन सेम हो जाए. और ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो 6.1 में भी और 6.2 में भी. सो आई हैव मल्टीप्लाई 20 by 3 by 2. 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 2 is 6 और 20 into 2 will give you 40. तो now look at over here बच्चे. So now see over here. Now here we have done the LCM as same and here also we have done the LCM as same. तो 4 और 4 2 टाइम्स है तो इसको हम ऐड नहीं करते डिनोमिनेटर में. याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आएगी डिजिट और सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होता है. तो 62 plus 27 you will do, it will give you 89. Now come on the right hand side. Again your denominator is same, so you will write 6 once. 81 plus 40 you will do, और 81 plus 40 will give you 121. तो अब यहाँ पर 4 और 6 अगेन आपका जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, तो अभी हम इसे फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और अपनी लास्ट फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. तो 4 और 6 का मैंने एलसीएम लिया. आई हैव टेकन द एलसीएम अगेन, आई गॉट इट एज 12. मुझे 12 मिला यहाँ पर. सो आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू बच्चे, अगेन 12 मिला. देखो 4 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा. तो जिस नंबर की मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे वहीं आप ऊपर भी करोगे. तो 89 into 3 will give you 267 और 4 3s will be 12. Now come to the right part. 121 by 6. तो अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो मुझे अपना एलसीएम मिल जाएगा 12. तो सेम नंबर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो 121 into 2 will give you 242 और 12 2s sorry this is 6. Now 6 into 2 will give you again 12. So you can look over here that your denominator is same. अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम अपने न्यूमरेटर को आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट योर न्यूमरेटर, और आपको डिनोमिनेटर तो 1 से लिखना है, आप इसको 12 minus 12 करके कोई बच्चा 0 नहीं लिख देगा. ओके, व्हेन डिनोमिनेटर सेम इन द फ्रैक्शन यू विल राइट 1s. So it will become 25 by 12.
और जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1/12। स्टूडेंट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस। द क्वेश्चन इज सेइंग कि इस फ्रैक्शन में हम ऐसा क्या ऐड करें, वी डोंट नो, सो दैट इज आई हैव पुट इन अ क्वेश्चन मार्क। इस फ्रैक्शन में हम ऐसा क्या ऐड करें कि सो दैट आई कैन गेट 20। सो लेट अस अज्यूम दैट वी शुड ऐड x ओवर हेयर। हमने मान लिया कि हम इस फ्रैक्शन में x ऐड कर देते हैं ताकि हमें 20 मिले। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अज्यूम दैट वी शुड अज्यूम, लेट करना मतलब अज्यूम करना, हमने मान लिया कि हम इस फ्रैक्शन में x को ऐड करते हैं ताकि हमें 20 मिल जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस फ्रैक्शन वी आर एडिंग x so that we can get 20। तो अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, so we have to convert it into the fraction। so 12 5s are, everybody know that it is 60। 60 plus 3 will give you 63, so you will write 63/5 as it is and 6x over here। अब देखो बेटा, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इस 63/5 को आई विल टेक ओवर है, मैं इधर लेकर चली जाऊँगी तो x यहाँ ही रहेगा क्योंकि हम x को कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे, बट येस वी आर शिफ्टिंग 63/5, सो इट विल बिकम 20 माइनस 63/5। तो अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 1 है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेन नथिंग इज देयर इन द डिनोमिनेटर दैट मीन्स 1 इज देयर। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, देखो हमें इसे सबट्रैक्ट करना है तो हमें अपने डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो 20/1 है, 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करती हूँ तो 63/5, यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा और मैं इसे सॉल्व कर पाऊँगी। तो जो नंबर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सेम वही ऊपर भी करते हो, दिस इज़ योर रूल। 20 इंटू 5 विल गिव यू 100/5, 63/5। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वी विल राइट इट एज वंस, हम इसे एक ही बार लिखेंगे। 100 माइनस 63 आपको क्या देगा, व्हाट इज़ 100 माइनस 63, सो 100 माइनस 63 विल गिव यू बेटा 37/5। और अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 7 5/2। ओके, सो आई एम वेटिंग, काइंडली नोट इट डाउन एंड यू विल डू क्वेश्चन नंबर 6 बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23/4। 23/4 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमें 10 1/2 मिल जाए। तो वही आप करोगे कि हम x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ ऐड कर रहे थे वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से सेम जैसे ही आप डिजिट को दूसरी साइड ले जाओगे, देखो यहाँ ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके क्या हुआ, नेगेटिव। तो सेम अगर आपकी कोई नेगेटिव डिजिट होगी तो सेकंड साइड जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 होगा, दैट विल बी योर होमवर्क। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 आर ऑल सेम, ये सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम ही रहेगा। सो 7 आई विल डू एंड 8 विल बी योर होमवर्क, अगेन 9 आई विल डू फॉर यू एंड 10 विल बी योर होमवर्क। Okay, so now if you look at the question number 7, Rohit spent 2/5 of his pocket money on a science fiction book। रोहित ने like students used to have pocket money from their parents, बच्चों को pocket money मिलती है अपने पेरेंट्स से, ऐसे ही रोहित को मिली है। तो जिसमें से 2/5 जो है उसने साइंस बुक पे स्पेंड कर दिया है, 1/6 पॉकेट मनी का उसने न्यूज़पेपर परचेज में फिक्स स्पेंड कर दिया और 2/15 उसने रिक्रिएशन पर छोड़ दिया, मतलब खर्च कर दिया। सो अब कितना पॉकेट मनी उसके पास रह गया होगा। सो द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आई हैव रिटन दैट ऑन द ब्लैक बोर्ड दैट द मनी स्पेंड बाय रोहित ऑन साइंस फिक्शन बुक इज 2/5। जो रोहित ने साइंस फिक्शन बुक पर पैसे खर्च किए वो है 2/5। मनी स्पेंड बाय रोहित ऑन न्यूज़पेपर, रोहित ने न्यूज़पेपर पर कितना मनी स्पेंड किया, 1/6। ये डैश का मतलब है ये सारी स्टेटमेंट ऐसी आएगी, साइंस फिक्शन बुक को नहीं लिखोगे आप, ठीक है, सिर्फ आएगा मनी स्पेंड बाय रोहित ऑन न्यूज़पेपर। तो आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, मनी स्पेंड बाय रोहित ऑन रिक्रिएशन दैट इज़ 2/15। अब टोटल मनी उसका कितना हो गया जो वो स्पेंड कर चुका है, तो टोटल मनी स्पेंड ऑन ऑल, सारी चीज़ों पे कितना खर्च हुआ, 2/5 1/6 एंड 2/15। तो हमने इन सबको ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद पॉकेट मनी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हो 5 6 एंड 15 ये आपका सेम नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम ना। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 5 6 एंड 15 और इनका एलसीएम आपको लेकर क्या मिलेगा, 30। सो बच्चे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 30। सो नाउ लेट्स मूव टू 30, हमें मिल चुका है एलसीएम। तो अब हमारा मोटिव क्या होता है कि अपने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें।
तभी तो हम अपने इस टोटल मनी को ऐड कर पाएंगे। तो वही सेम प्रोसीजर हम अब करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, 2/5 मैं ऐसे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 30 मिल जाए? अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 6 है 30, तो उसी 6 की मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करनी होगी। प्लस साइन यू विल राइट एज इट इज, अगेन 1/6 इज देयर, सो 6 5 इज अगेन 30, तो 6 की मल्टीप्लाई इफ आई डू विद द 5 तो सेम नंबर मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। और ये सारा प्रोसेस किस लिए? ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम इन नंबर्स को ऐड कर पाएँ। 15 इज गिवन, 15 टू सा क्या होता है? 30, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 15 विद द 2 यू विल गेट दिस एलसीएम 30, और जिस नंबर की मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे वही ऊपर करोगे। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4 एंड 15 इंटू 2 30। तो आप देखो सारा आपका डिनोमिनेटर इज सेम, ऑल डिनोमिनेटर इज सेम, सो यू विल राइट 30 वंस एंड यू विल राइट 12 5 एंड प्लस 4। तो बच्चे कितना हो गया? 12 और 5 17, 17 एंड 4 21/30। तो अभी हमें टोटल जो मनी स्पेंड हुआ है वो हमें मिल चुका है, दैट इज़ 21/30। अब हमें पॉकेट मनी का निकालना है। ना लुक ओवर है स्टूडेंट्स, जो हमारा टोटल मनी आया था, जो खर्च हो चुका है, स्पेंड हो चुका है पॉकेट मनी से, वो 21/30 था। और ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। कौन सा टेबल है वो? 3 का टेबल। सो आप इसे यहाँ पर ही रिड्यूस कर दोगे, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। सो व्हेन यू डिवाइड 21 एंड 3 यू विल गेट 7, 30 डिवाइडेड 3 विल गिव यू 10। सो अब टोटल पॉकेट मनी हमारी अगर 1 है तो 1 में से हमें 7/10 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 है। सो यहाँ पर अब हमारी एक ही डिजिट मेंशन है, तो हम यहाँ पर उसी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और यहाँ तो 10 है ही, तो हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो 1 इंटू 10 विल गिव यू 10 अपॉन 10, 7 इंटू 10। तो अब बेटा देखो यहाँ डिनोमिनेटर आपका सेम है, यस और नो? डिनोमिनेटर सेम है ना, तो अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 विल गिव यू 3/10। सो पॉकेट मनी लेफ्ट इज 3/7। सो काइंडली नोट इट। Students, look at the question number 9. What is written in the question number 9? I am reading that in a boarding school, एक बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल इज़ दैट के जहाँ पर स्कूल के बाद भी बच्चे रहते हैं। सो 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर इन प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन मीन्स फ्रॉम टिल 5th क्लास, फ्रॉम योर प्री स्कूल टू 5th, दैट इज़ योर ऑल प्राइमरी सेक्शन। वहाँ के बच्चों की जो स्ट्रेंथ है बोर्डिंग स्कूल में वो 2/3 है। और जो मिडल सेक्शन है यानी कि आफ्टर योर 5th क्लास, दैट विल बी 3/10। सो बाकी जो रेस्ट है वो आपके हायर सेक्शंस हैं, सेकेंडरी सेक्शंस हैं और हायर क्लासेस हैं लाइक 9, 10, 11, 12। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इज़ इन सेकेंडरी सेक्शन? तो अब हमारे पास 2 सेक्शन दिया हुआ है, प्राइमरी भी दिया हुआ है, मिडल भी दिया हुआ है, दैट इज़ टिल 8th क्लास तक का फ्रैक्शन हमें दे दिया गया है। अब आगे का फ्रैक्शन वी हैव टू फाइंड। सो सिंपल सी बात है, हमारा 8th क्लास तक का टोटल सेक्शन कितना हो गया? प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर 2/3 एंड 3/10। और ये तो हमारा क्वेश्चन में रिटर्न है sorry, that children in primary section is 2/3 and children in secondary section is 3/10. This is the statement of the question, so we have written that. So total students कितने हो गए प्राइमरी और मिडिल सेक्शन में? दोनों के फ्रैक्शन को हम ऐड कर देंगे। तो नाउ बच्चे हम इसे ऐड तो नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि हमारा 3 और 10 यू कैन सी दैट अ मेजर डिफरेंस इज देयर। 3 और 10 ऐड तो हो नहीं सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ 3 एंड 10। सो जब मैं 3 और 10 का एलसीएम लूँगी आई विल गेट 30। अब एलसीएम लेने में आप अवेयर हो तो बार बार एलसीएम कौन तो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लिख सकते हो ऐसे ही। सो अब बेटा देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ हमें 30 चाहिए दोनों साइड। तो मैं क्या करूँगी एडिशन के लिए? 2 इंटू 3 इंटू 10। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 10 से करती हूँ तो इट विल मेक 30, और जो नंबर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर करेंगे। प्लस 3 10 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। 2 इंटू 10 विल गिव यू 20 बाय 3 इंटू 10 विल गिव यू 30 प्लस अब 3 3 से 9 क्या होता है? व्हाट इज 3 3 से 9? 3 3 से 9 ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट 3 3 इज 9 एंड 10 इंटू 3 विल अगेन गिव यू 30। तो अब हमारा डिनोमिनेटर बच्चे क्या हो गया? डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगी एडिशन में? बिल्कुल नहीं। अब हम 30 को 1 टाइम लिखेंगे बच्चे और 20 और 9 को ऐड कर देंगे। सो इट विल गिव अस 29/30। तो हमें क्या मिल जाएगा? 29/30। तो बेटा अब ये तो आपका सिर्फ एडिशन हुआ। अब हमें सेकेंडरी सेक्शन निकालना है।
हमें मिडिल सेक्शन तक गिवन था, अब हमें सेकेंडरी सेक्शन निकालना है। सो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सेकेंडरी की जगह आप मिडिल सेक्शन नहीं लिखना ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि सेकेंडरी आपका 8th में भी आता है और अपर हायर क्लासेस में भी आ जाता है, पर वो सीनियर सेकेंडरी होते हैं। तो हमें अब आगे की क्लासेस 8 के बाद की क्लासेस की स्ट्रेंथ कितनी है वो निकालनी है, और 8 तक की हमें स्ट्रेंथ 29/30 मिल चुकी है। सो नाउ बच्चों वी गॉट 29/30। तो हमने मान लिया कि जो तो अब हमें क्या निकालना है, चिल्ड्रन इन सेकेंडरी सेक्शन। तो हमने मान लिया दैट दे आर टोटल 1, कि वो 1 थे। अब 1 में से जो हमारे ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 1 में से ये फ्रैक्शन तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आप इसके डिनोमिनेटर्स को सेम ना कर दो। तो यहाँ पर 30 है, जब हमारे पास सिर्फ इस टाइप से 1 गिवन हो या कोई भी नंबर गिवन हो तो उसके डिनोमिनेटर साइड क्या होता है, 1 होता है। तो आप 30 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे और नीचे भी कर दोगे, तो ये भी आपका 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। उससे हमें कोई मैटर नहीं कि न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आ रही है, बट मेन है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए ताकि हम फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएँ। तो 30 - 29, और 30 तो आपको 1 टाइम में लिखना होता है, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। सो 30 × 30 - 29 विल गिव यू 1/30. तो you will write the statement that the students in the secondary section are 1/30. Is that clear? Kindly look at your homework. So what is your homework? That do question number 3, B, D, E and F part, and question 6, 8 and 10 of exercise 6.2. Okay. So who has done earlier, जिन्होंने पहले कर लिया तो उनको दोबारा करने की नीड नहीं है, बट जिन्होंने नहीं किया वो स्टूडेंट्स करेंगे। So now let's move to the practice session of the fraction chapter. Let's do the mental maths, that is your fill-ups. Let's just do the practice session of the fractions chapter number 6, mental maths. Open your book, page number 27. So you will write these in the book first, after that you will write in your notebook. Is that clear? So first one, a dash is a number that represent a part of a whole. वो नंबर बताओ जो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और कंप्लीट होल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा चैप्टर का बेसिक था। क्या बेसिक था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसमें से 2 पार्ट शेडेड है तो हम क्या करते थे, शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट, तो यही तो होता था पार्ट अपॉन होल, तो ये हमारा क्या होता था, फ्रैक्शन। सो फर्स्ट आंसर विल बी फ्रैक्शन। अब सेकेंड है अ फ्रैक्शन विच हैज़ 1 एज न्यूमरेटर, और जिसका 1 न्यूमरेटर होता था तो वो क्या होते थे, इफ़ आई विल गिव द एग्जाम्पल, जिनके 1 न्यूमरेटर होते थे दैट विल बी योर यूनिट फ्रैक्शन, वो हमारे यूनिट फ्रैक्शन होते थे। तो सेकंड का आंसर है यूनिट फ्रैक्शन। अब द फ्रैक्शन विच इज़ लेस देन 1, वो फ्रैक्शन जो 1 से कम होते हैं, मतलब जिनको अगर आप डिवाइड करो, जैसे 1/8 है, अगर आप 1/8 को डिवाइड करो तो आपका लेस देन, उनका जो रेशो आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। So that fraction is basically your proper fraction. इसके another definition when numerator is less than your denominator. Fourth one, जिनके देखो बेटा यहाँ पर जैसे I have written this example, यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो दैट डेफिनेशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इज गिवन इन द फोर्थ वन। नाउ लुक एट द फिफ्थ वन। आपको इस नंबर को 28/36 को लोवेस्ट रिड्यूस करना है, लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना होता है जो आपका एक ही टेबल से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता है। तो आई हैव सर्च्ड अ नंबर दैट इज़ 4। अगर मैं 28 और 4 को डिवाइड करूँगी आई विल गेट 7, और 36 और 4 भी डिवाइड हो जाएंगे तो इट विल गिव मी 9। सो द आंसर विल बी 7/9 फॉर दैट। इज दैट क्लियर? Now बेटा look at the sixth one. The equivalent fraction of 3/5 with the numerator 15 is dash. ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है। equivalent fraction क्या होते हैं, हम अगर हमें 3/5 के equivalent fractions चाहिए तो हम सबसे पहले 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइड मल्टीप्लाई करते हैं, देन 3 से करते हैं, फिर 4 से, फिर 5 से एंड 6 से, ऐसे ही हमें मिल जाते हैं, से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें हिंट दी गई है कि हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसका न्यूमरेटर 15 आए। तो बेटा अगर आप देखो 3 × 5, न्यूमरेटर आपका ये पार्ट होता है और डिनोमिनेटर इज़ 10। तो इन द क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिससे आपका न्यूमरेटर 15 हो जाए। तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूँ तो जो मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगी वही मुझे मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी होगी, येस और नो? तो इफ़ आई मल्टीप्लाई 3 विद द 5 इट विल गिव मी 15। तो कंडीशन फुलफिल हो गई है, हमारा न्यूमरेटर 15 हो गया एंड 5 5 इज 25। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा 15/25। ओके,
आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसमें न्यूमरेटर 15 आना चाहिए। तो सिंपल, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं कि न्यूमरेटर में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें, बस हमें ये सोचना है कि हमारा न्यूमरेटर 15 बन जाए। तो अगर 3 की मल्टीप्लाई यू विल डू विद द 5, यू विल गेट 15, और जो नंबर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आपको नीचे भी करना होता है, और अगर आप कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आपको ऊपर भी करना होता है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहे हैं कि 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है x/28। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली वो इक्वल है, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट। सो मैंने इन्हें पहले इक्वल रख दिया। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि दैट दे आर इक्वल, तो मैंने इन्हें इक्वल ही रखा है। तो अब इसे सिंपल मेथड है सॉल्व करने का, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस का मतलब ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और दिस नंबर विल गो टू दिस इन मल्टीप्लिकेशन। सो यू विल राइट 3 × 28 इज इक्वल्स टू x × 4. अब वी वांट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर x इन द ब्लैंक। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक 4 ऑन द अदर साइड। और मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, अगर आप किसी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इक्वल्स टू के अदर साइड लेकर जाते हो तो उसका साइन अपोजिट होता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 4, तो दूसरी साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड। ओके, दैट विल बिकम डिवाइड। सो सिंपली राइट 3/28 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x. So बच्चे, when you multiply 3 and 28 you will get 84 and you will divide it by 4, so it will give you x. 84 divided 4 will give you x as 21. तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/28. इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दैट दे आर इक्वल। जो भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 28 विल बी मल्टीप्लाइड विद द 3 एंड 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद द x. तो वी वांट द वैल्यू ऑफ दिस x एंड विद द x 4 इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो अदर साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मैं एक बात बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो मेथड ये होता है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 से। रीज़न क्या होता है कि हम सेम मल्टीप्लाई करते हैं कि ये दोनों कैंसिल होते हैं हर बार, और आपकी जो वैल्यू वो प्रिजर्व रहती है, आपका जो फ्रैक्शन है वो हमेशा सेम रहता है। इसीलिए हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई डिफरेंट फ्रैक्शंस को निकालने में करते हैं। तो अगर आप x के प्लेस पर यहाँ 21 लिखोगे और 28 लिखोगे और दोनों को किसी एक टेबल से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3/4 बैक। तो आपको 3/4 बैक मिलेगा, तभी इक्विवेलेंट हो सकते हैं। नाउ बेटा लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ यू लुक ओवर हेयर 1/2 1/2 1/2 इज़ गिवन टू यू। तो यहाँ पर 2 जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ एलसीएम वगैरह भी नहीं लेना। अब हम सिंपल न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और 2 को 1 टाइम लिखेंगे, तो 1 + 1 + 1 विल गिव यू 3/2। तो हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो गया सिंपली। और अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो यू कैन डू 1/2 विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने अभी आपको 7 क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम वैसा ही है। 60/75 इज इक्विवेलेंट टू 4/x। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि मैम हम 60 और 75 को 5 के टेबल से डिवाइड करके रिड्यूस भी तो कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो, बट लेकिन डबल स्टेप लेने की बजाय मैंने एक ही जो मेथड आपको कराया मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 की मल्टीप्लाई x से होगी और 75 की मल्टीप्लाई विल बी डन बाय 4। ओके, ठीक है बच्चे। तो अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप 4 और 75 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 300, ठीक है। तो मुझे मिला था 60 × x इज इक्वल्स टू 300। अब 60x के साथ यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, साइन चेंज। तो अब देखो यहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, तो 0 और 0 हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लस माइनस में कुछ ना हो और इस तरह का फ्रैक्शन हो तो आप 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया, 30 और 6। तो 30 और 6 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5। एंड द लास्ट D 10th पार्ट, द फ्रैक्शन इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म तब कह सकते हैं जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, 1। सो 10th का आंसर होगा आपका 1। हैव अ गुड डे to all students and do the work in the notebook.